बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों काफ़ी दिन के बाद आप वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था। कुछ इवेंट्स वगैरह थे हमारे कैफ़े के, उसकी भी मैं आपको बहुत जल्दी आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी क्या है, सुबह का वक्त है और फ़ायज़ा ने, सुबह का नहीं है, खैर दोपहर का, तो फ़ायज़ा ने खाना बनाया है। और पता नहीं सुबह से फ़ायज़ा बात नहीं कर रही मेरे से, क्या रीज़न है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने उससे कहा कि हाँ मैं वीडियो करने वाला हूँ तो तुम ज़रा खाना सर्व करने लगो। देखते हैं कि खाना उसने क्या बनाया है और वो नाराज़ क्यों है। तो भाई मैं रूम में आ गया हूँ। व्हाट टू कुक? Dal and rice. Hi Dostu, how are you doing? Hi dude, namaste Marina. Hi dude, namaste Marina Faiza. Hey, how are you doing Dostu? It is lunch time and we have to eat our lunch. What it is? Rice and mixed sabzi. Rice and mixed dal sabzi. Okay, where I sit? Hmm? Where I sit? I don't know, sit properly. I don't know wherever you want. There are lots of places. Why are you behaving like this from morning? You don't know. I don't know. That's why I'm asking you. Think a bit. Think what? You are just from morning. You are not talking properly. What And has I been listen. what has been keeping me these days so much energetic in your idea? What has been keeping me feeling so good these days? I don't know. You don't know, so it means that you I'm. don't know me. You don't know your wife. I know you're happy, but what's the problem? You don't think that in these days I change after you say something. But to say clearly why you are sad. Like, well, I'm hungry. I have to eat and say. After we decided something, Uh huh. even I think our friends know this thing. After we decided something, I feel very much energetic. I think even these days, uh, this for me tolerating here in these days become easier because of thinking about such thing. You don't know, Say. Why you are just round and round? Say clearly. because it is very much a mind of that you don't know it. I know. You don't know. You Again, literally you are don't. not You saying. don't know. Sorry, What? really, you don't know these days. This listen. If you are saying say, otherwise I'm not saying you again. What it is? Why you are sad? Do you see? As if I am the over. As if I am the over. Uh, the problem is this thing that it's round about some weeks. I'm saying consistently to Sam that someday, I don't know even consistently. Some days I start asking them, okay, your visa, this thing, that thing, this thing, that thing. Because of the visa, even we have to do some other thing. Like Okay. he has to take action for his driving license. After that, we have so many things to do. We have to put our concentration on our other things. So first of all, you have to do this first. It is the first step that we have to do. But you just procrastinate it. Understand it. We have to come Okay. back to Okay. So Ivan. wait. Darling, listen. If these days my mood could change, if these days I feel a bit energetic, it does not mean that I am adjusting myself. Okay, Okay. I am Wait. still under stress, but because I started thinking about coming back to Iran and my safe zone, actually our safe zone. Okay. So I'm doing. What's I'm doing. I will you're do not today. doing it. Is it? You have been saying these words and this sentence to me some weeks ago, and some weeks ago Okay. I will do. now. Today I will do. Look, I don't know. In front of me, you have to fill out that form and everything which is needed for the visa. I don't know because literally, darling, just understand this thing. I cannot be in India more than it. I am under stress. Okay, even you are under stress. Don't try to hide it. Both Okay. of us are under stresses that you know. Even our friends know it somehow, not in details, but also you know. So do it in front of me after eating food. Really. ओके ओके। तो दोस्तों मैं बहुत दिन से टाल रहा था, मतलब टाल नहीं रहा था यार, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीज़ा का। और मुझे वीज़ा भर करना है और वीज़ा आने में भी बहुत टाइम लगेगा। और ये वीज़ा मैं आज भर देता हूँ, आज फिल कर देता हूँ, आप सबको भी But it is दिखाता हूँ। important. You have to do it as soon as possible. ओके। As soon as we finish our food, actually. तो जैसे हम लोग खाना कंप्लीट करते हैं उसके बाद मैं वीज़ा एप्लीकेशन भरता हूँ, आप सबको भी दिखाता हूँ ईरान का वीज़ा कैसे भरा जाता है। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं,
तो आप सबके सामने मैं थोड़ी देर में मैं और फायजा बैठ के ईरान का वीज़ा जो है वो Promise भरेंगे। me after taking. यस, आप वी बोथ सिट टुगेदर एंड वी विल Okay, फिल। so the dostos are our witnesses. तो Yeah. दोस्तों अभी हम खाना खाते So हैं। now you're a good boy. Let me show the food to them. इट इज़ राइस। तो भाई फायजा ने जो खाना बनाया वो आप देख लो। It is mixed sabzi dosto. दाल है और चावल है। Mixed dal. मिक्स दाल है। Several dals exist in it. Okay. So because I am now, I feel a bit happy. He promised me, yeah. So after eating food, do it okay in front of my eyes, daily. तो दोस्तों अब हम भरने वाले हैं वीज़ा का फॉर्म और उसके लिए फायजा यहाँ पर है। Yes, I'm fine with it. I'm fine. और इसलिए मैंने माइक भी ले लिया है। माइक में लगा लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि वीज़ा एप्लीकेशन ईरान की कैसे जो है फिल करी जाती है। तो हम जो है यहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वीज़ा की एप्लीकेशन जो है वो ऑन कर ली है और आप जो वेबसाइट जहाँ पर जाना होता है वो है evisa.mfa.ir। जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं तो इस तरीके का एक इंटरफेस खुल जाता है। मैंने फ़ोन से भी वीज़ा एप्लीकेशन भरी थी और आप देख लीजिए यहाँ पे चारों जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं एप्लीकेशंस के अंदर, हम वो देख रहे हैं पहले कि क्या क्या है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए क्या होता है। और हम फिर से ऊपर की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल एंड ट्रैवलर लिखा हुआ है। फिर से एक इंटरफेस शुरू हो जाता है और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और हम इस पे जो ये है ना चेक करने का, ये फारसी में लिखा हुआ है दैट यू आर रोबोट ऐसे करके आता है, तो उसको हमें चेक करना है। अब ये जो है यहाँ से वीज़ा एप्लीकेशन जो है शुरू हो जाती है और वीज़ा एप्लीकेशन देखिए शुरू हो गई है। यहाँ पे स्टार्ट अब वीज़ा एप्लीकेशन हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम अब चीज़ें हम फिल करेंगे। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर चीज़ को वेरीफाई करना है। वीज़ा टाइप जो है वो क्या है, तो एंट्री वीज़ा हम इसमें कर देंगे और क्योंकि मेरा एंट्री वीज़ा है, इसमें टूरिस्ट वीज़ा भी होता है और डिफरेंट तरीके के वीज़ाज़ होते हैं। और यहाँ पर जो है नेशनलिटी है उसमें हम इंडिया लिख देते हैं, इंडिया फिल कर लेते हैं। पासपोर्ट क्या है, ज़्यादातर लोगों का पासपोर्ट ऑर्डिनरी होता है तो हम लोग इसमें ऑर्डिनरी सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लेस ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट तो दिल्ली है हमारा, तो हम यहाँ पे दिल्ली जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एम्बेसी है वहाँ पर, और फिर सेव एंड प्रोसीड करके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब जो दूसरा स्टेप है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम फिल करते हैं। नेशनलिटी, वीज़ा टाइप ये पहले से हो रखा है। यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, देख लीजिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ सरनेम लिख दिया, नीचे फादर्स नेम लिख दिया और बाकी की जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो फॉर्म में होती हैं वो लिख दिया है। डेट ऑफ बर्थ कर दी है मैंने। डेट ऑफ बर्थ करने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आता है, इसमें मैरिड करा है मैंने। ऑक्यूपेशन जो है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिख के। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है वो होती है पर्सनल फ़ोटो। तो पर्सनल फ़ोटो का जो साइज़ होता है ना यार, वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए तभी ये ओके होता है। इसका कुछ पिक्सल्स होते हैं वो आप चाहे चैट जीपीटी से देख के पढ़ सकते हैं, किसी से भी। नेक्स्ट में ये फ़ोन नंबर मांगता है, एक ईरान का मांगेगा, एक आपके इंडिया का मांगेगा। जैसे मैं एंट्री वीज़ा भर रहा हूँ तो टूरिस्ट वीज़ा में ईरान का कुछ ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे पहले मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ और यहाँ पर ज़िप कोड मैंने डाल दिया है, यहाँ पर मैंने एड्रेस लिख दिया है। ये फ़ोन नंबर जो यहाँ मांग रहा है, ईरान का मांग रहा है, ये भी मैंने फिल कर दिया है। अब पासपोर्ट की डिटेल्स आ जाती हैं, तो यहाँ पे मैंने पासपोर्ट नंबर डाल दिया था और कब एक्सपायरी होता है वो पासपोर्ट, सारी चीज़ें आती हैं। फिर दूसरा इंटरफेस शुरू हो जाता है यहाँ पे, जो कि ये पूछता है कि ड्यूरेशन कितने दिन तक की लेनी है। तो मैंने यहाँ 90 डेज़ करा है। वंस, डबल और सिंगल एंट्री, मतलब एंट्री जो वीज़ा है वो कितने टाइम का होता है। मतलब आप ये देखिएगा कि जो एंट्री का वीज़ा है, मतलब इसमें मल्टीपल जो हो सकता है ना, मल्टीपल भी एंट्री हो सकती है। मतलब जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं जाता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ, फिर मैं जा सकता हूँ, तो मुझे वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मल्टीपल एंट्री के लिए होता है। यहाँ पे मैंने वन चूज़ करा है, यानी मुझे मल्टीपल एंट्री का नहीं चाहिए है, तो मैं आगे का देख लेता हूँ। और यहाँ पे एक आप देखें तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, अर्जेंट इफ़ यू चेक
विल बी चार्ज 50% मोर। अगर आपको वीज़ा बहुत ही अर्जेंट चाहिए होगा तो 50% जो भी चार्जेस होंगे वो मैं आगे चल के बता रहा हूँ आपको, आगे बताऊँगा कितने चार्जेस है इसके। तो उसका 50% आपको एक्स्ट्रा देना होगा। अर्जेंट में बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे पर्पस ऑफ ट्रैवल लिखना होता है और फिर अप्रॉक्सीमेटली अराइवल डेट क्या है। तो मैंने पर्पस ऑफ ट्रैवल यहाँ पे फैमिली विजिट लिख दिया है और अप्रॉक्सीमेटली अराइवल डेट मैंने यहाँ पे जो डाली है वो मैंने यहाँ पे डाली है 15 दिसंबर, जो मेरी अप्रॉक्सीमेटली मतलब यहाँ से अराइवल डेट है। और वहाँ से वापस आने की डेट जो मैंने लिखी है वो मार्च लिखी है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। तो जब हम ये डेट वगैरह डाल देते हैं कि हमारी जो है अराइवल डेट कब है और वहाँ से डिपार्चर डेट क्या होने वाली है, उसके बाद एक नीचे एक फ़ाइल के लिए ये पूछते हैं जो कि है आपका रेजिडेंशियल कार्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिडेंशियल कार्ड चूज एंड फाइल। तो आप इसमें अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें अपना आधार कार्ड डाल दिया क्योंकि रेजिडेंशियल प्रूफ हमारे लिए हमारा आधार कार्ड ही है, तो मैंने आधार कार्ड डाला है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को हमने जो है रिफ़्रेश करने के बाद सिक्योरिटी कोड भी डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड किया और सेव एंड प्रोसीड करने के बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि एम्बेसी ऑफ ईरान ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यू दिल्ली, और फीस लिखी है 8,050 रुपये, यानी कि एंट्री वीज़ा की 3 महीने की फ़ीस है 8,050 रुपये। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सीड 90 डेज़, मतलब 90 डेज से ज़्यादा आप वहाँ नहीं रुक सकते इस वीज़ा में। लेकिन इसमें एंट्री वीज़ा में एक खासियत ये होती है कि हम इसको एक्सटेंड करा सकते हैं, यानी कि किसी वैलिड रीज़न से, जैसे कि फ़ायज़ा का कि मेरी जो वाइफ है उसकी यहाँ जॉब है, इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। डिपेंड करता है, वहाँ भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं मिनिस्ट्री में। फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ये सब करने के बाद सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस आता है जो कि यहाँ लिखा है कि यू हैव कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन एंड ईमेल कंटेन अ वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, जो कि 12 घंटे तक के लिए वैलिड होता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने ईमेल में जाएंगे, देखेंगे कि हमारे पास ये मेल आया है कि नहीं आया। मैं ईमेल आईडी में आ गया हूँ, मैंने रिफ़्रेश करा तो नहीं आया है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये स्पैम में पहुँचता है, तो हम यहाँ से जाएंगे स्पैम में, और स्पैम कई बार स्पैम में आ जाता है ये, और स्पैम में जाके जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमें ये कोड मिल जाएगा। वहाँ पे ये ईमेल आएगा, यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेस, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो जब ये एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाती है उसके बाद ये लिख के आता है कि आप इसको 5 दिन बाद इसको ट्रैक कर सकते हो, पता कर सकते हो। जो फीस सबमिट होगी, जब ये एप्लीकेशन का अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद ये फीस सबमिट होगी कहाँ, एम्बेसी में। तो हमें एम्बेसी जाना होगा, एम्बेसी में जाने के बाद ये फ़ीस सबमिट होगी। और इस तरीके से मैंने वीज़ा एप्लीकेशन अपनी फ़िल कर दी है। कुछ दिन बाद मेरे को इसका अप्रूवल आ जाएगा। अप्रूवल आने के बाद जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ये लोग मुझसे मांगेंगे, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं और दूसरी चीज़ें इंडिया का मैरिज सर्टिफिकेट मांगेंगे। ये सारी चीज़ें जब ये लोग मुझसे मांगेंगे तब मैंने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा और फिर मुझे वीज़ा मिल जाएगा। लगभग 10 दिन का प्रोसेस है। तो दोस्तों आज मैंने फाइनली जो है भर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ वीज़ा ऑफ ईरान। तो मेरा जाना तो खैर कंफर्म है, मैं मतलब 1000% जाऊँगा ही जाऊँगा। और बाकी का स्टेप आगे मैं आपको बताता रहूँगा। अगले स्टेप में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप ईरान की चीप टिकट, यानी बहुत ही ज़्यादा सस्ती टिकट कहाँ से बुक कर सकते हो। मैं बुक करके दिखाता हूँ आपको, मैं अपनी और फ़ायज़ा की कैसे ईरान की टिकट बुक करता हूँ, कौन सी एयरलाइन से बुक करता हूँ और कितना ज़्यादा चार्ज आता है। इस वीडियो में आपने सीखा कैसे भरते हैं ईरान का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैंने इस तरीके से करा है जो कि एंट्री वीज़ा के लिए यही वाला वैलिड है, मैंने बहुत पूछा है। दूसरा मैं ये भी करने वाला हूँ, मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करूँगा जब मेरा वीज़ा आ जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे भरते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। हो सकता है आपके क्या प्रोसेस दिखाऊँगा, हो सकता है आपके किसी काम आए। और जो आपके काम आएगा वो ये है और जो मेरे काम आएगा वो ये है कि आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और भरिए श्री राम पर्सन की मेंबरशिप, फ्रेंचाइजी की मेंबरशिप का फॉर्म और करिए
फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।